Hello students, today we will see the relations between linear velocity and angular velocity. We know linear velocity, displacement per unit time, ds by dt, and angular velocity. Angular velocity को हम ओमेगा से नोट करेंगे and it is angular displacement per unit time d theta. And we already know angle equal to arc upon radius. So here arc ds and radius r. Okay, so linear velocity v equal to ds by dt, linear displacement per unit time, angular displacement per unit time, angular velocity, and angle equal to arc upon radius. Now see in this diagram, suppose body moving in circular motions. So from A to B, this is linear displacement, and the angle between this angle AOB from A to B, this is theta. Okay, so now here ds upon dt and d theta upon dt, divide both things. So v upon omega equal to ds upon dt divided by d theta upon dt. Now dt से dt cancel out हो जाएगा. So v equal to ds by d theta. v equals to omega ds upon d theta. Now put the value of d theta. Here d theta equal to ds by r. So v omega ds and d theta equal to ds by r. So ds से ds cancel out, यानी r ऊपर आ जाएगा. So v upon omega equal to r. So v equal to omega r. So this is the required relation between linear velocity v and angular velocity omega. Okay, again we will see. Suppose a body moving on a circular path from A to B. So at any instant the linear displacement AB ds and the angle formed by from A to B d theta. So linear velocity v equal to ds by dt and angular velocity d theta upon dt, and angle equal to arc upon radius. So we combine all the three equations and we will find the required relations v equal to omega r. Okay, now our next topic, relations between linear accelerations and angular accelerations. Linear acceleration a equal to linear velocity upon time change in linear velocity per unit time, and angular acceleration denoted by alpha. So angular velocity per unit time d omega upon dt. Okay, linear accelerations a equal to dv by dt and angular accelerations alpha equal to d omega upon dt. Now अभी हमने फाइंड किया है v इक्वल टू ओमेगा आर. सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t. सो dv अपॉन dt इक्वल टू r d ओमेगा अपॉन dt, एंड dv अपॉन dt इक्वल टू a and d omega upon dt equal to alpha. So this is the relations between linear acceleration and angular accelerations. So these two relations related to the circular motions of an object, and when an object moving in a uniform circular motion, then its speed is constant but velocity different. So uniform circular motion is an accelerated motion. Now students, we will solve the questions based on average velocity. We have already solved the questions based on relative velocity. Here is your NCERT exercise question number 3.14. A man walks on a straight road from his home to market 2.5 km away with a speed of 5 km per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 km per hour. ओके, यहाँ गिवन है पर्सन मार्केट जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी है उस टाइम 2.5 किलोमीटर पर आवर. पर जैसे ही देखता है, सॉरी मार्केट 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है एंड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रहा है. और जैसे ही मार्केट पहुँचता है और देखता है कि मार्केट क्लोज है, तो वो विद इन अ सेकेंड रिटर्न होता है
7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, बोथ दोनों ही चीज़ें हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट में हमें टाइम इंटरवल गिवन है 0 to 30 मिनट, सेकंड में टाइम इंटरवल गिवन है 0 to 50 मिनट, या थर्ड में हमें टाइम इंटरवल गिवन है 0 to 40 मिनट। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि जो भी उसका डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा है, और बचे हुए टाइम में क्या होगा, वो रिटर्न आएगा। ओके, तो जब मार्केट जा रहा है तो मार्केट का डिस्टेंस हमें गिवन है 2.5 किलोमीटर और स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड अ टाइम टू रीच द मार्केट। ओके, नाउ स्पीड फ्रॉम होम, सपोज home to market. Okay, the distance is 2.5 kilometer from home to market. His speed 5 kilometer per hour, and from market to home his speed 7.5 kilometer per hour. First we have to fall from home to market. So time taken by him, distance upon speed 2.5 divided by 5, it is 0.5 hours. हमें वहाँ टाइम इंटरवल मिनट्स में गिवन है, सो हम इस आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सो 0.5 इंटू व्हाट विल वी डू टू कन्वर्ट आवर्स इंटू मिनट, वी विल मल्टीप्लाइड बाय 60। 5 6 जा 30, सो 30 मिनट्स। सो उस पर्सन को होम टू मार्केट जाने में कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स। और इन फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, टाइम इंटरवल हमारा क्या है, 0 to 30 मिनट ही है। तो 30 मिनट में उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। उसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो जब तक डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है स्ट्रेट लाइन में, तब तक उस केस में उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो इस वाले केस में जब हमें टाइम इंटरवल कितना गिवन है, 0 to 30 मिनट, तो उतने टाइम में तो क्या हो रहा है, मार्केट ही पहुंच रहा है। तो इस केस में उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल होगी। सो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बोथ 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइम इंटरवल हमें गिवन है 50 मिनट। तो अब हमें ये तो पता चल गया है तो उसे होम से मार्केट तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट। अब हमें टाइम इंटरवल गिवन है 50 मिनट, तो उसके पास कितना टाइम बच गया, हाउ मच टाइम लेफ्ट, 20 मिनट्स। तो बचे हुए 20 मिनट में कहाँ जाएगा वो, मार्केट टू होम। ओके, और जब मार्केट टू होम जा रहा है तो उस केस में अब उसकी स्पीड क्या है, 7.5 किलोमीटर। और इतनी स्पीड से चलने के लिए उसके पास टाइम कितना बचा हुआ है, 20 मिनट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड अ डिस्टेंस इन द रिमेनिंग 20 मिनट्स। ओके, अब हम ये फाइंड करेंगे बचे हुए 20 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो कितना टाइम बचा हमारे पास, 20 मिनट। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू वेलोसिटी। सो डिस्टेंस स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास टाइम 20 मिनट्स है, बट ये स्पीड जो हमें गिवन है 7.5 किलोमीटर पर आवर, तो हम इस मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, 23 जा 60 एंड 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा एंड 1 2.5। how much distance he will cover, 2.5 kilometer. Okay, so total distance टू, देखो होम टू मार्केट डिस्टेंस 22.5। अगेन हमने जब फाइंड आउट किया 20 मिनट में तो भी 2.5 ही हो रहा है। सो इस केस में अगर हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करें, सो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 2.5 प्लस 2.5, हाउ मच, total distance 2.5 plus 2.5 5 kilometer. So average speed equal to total distance 5 and the total time 50 minutes. So 50 minutes, बट ये स्पीड हमारी किलोमीटर पर में, जिसको हम आवर्स में चेंज करेंगे। सो 50 डिवाइडेड बाय 60, सो 5 10 जा एंड 0, सो एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, बट एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर पहुँच गया हो, 2.5 माइनस 2.5, सो एवरेज वेलोसिटी बिकम्स हियर 0 सिंस द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो एवरेज वेलोसिटी
So here average velocity 0. Okay. Now the third part, the time interval is 40 सेकेंड 40 मिनट्स. ओके, तो अभी मैंने फाइंड किया ही है कि 0 to 30 मिनट्स में तो वो कहाँ पहुँच रहा है, मार्केट. अब कितना टाइम बच गया, 40 मिनट टाइम इंटरवल की मतलब 10 मिनट. सो इन दिस रिमेनिंग 10 मिनट he will move from market to home with a speed of 7.5 किलोमीटर. यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही करेंगे, बट यहाँ पर टाइम 20 की प्लेस पर फर्स्ट वी हैव टू फॉर डिस्टेंस. स्पीड 7.5, टाइम इंटरवल कितना बच रहा है 10 मिनट्स. वही से हम आवर्स में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 60. ये और ये कैंसिल, 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा. 6 1 जा 6 कैंसिल होगा, ये 6 1 जा 6, 15 बच रहा है, पॉइंट आ जाएगा. 16 2 जा 12 एंड देन 3, तो 1.25. सो डिस्टेंस 1.25 किलोमीटर फ्रॉम मार्केट टू होम. इतना डिस्टेंस वो 10 मिनट्स में ट्रेवल करेगा. सो टोटल डिस्टेंस, नो टोटल डिस्टेंस होम टू मार्केट 2.5, मार्केट टू होम 1.25. इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो कितना हो गया 3.75. सो टोटल डिस्टेंस 3.75 किलोमीटर. नाउ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस 3.75. ओके, टोटल डिस्टेंस 3.75 एंड टोटल टाइम 40 मिनट्स. मिनट्स को हम आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा. ओके, अब इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, जिसे भी हम करेंगे 0 से 0 कैंसिल, देन 2 2 जा 2 3 जा और 1.5, और इन दोनों का इंटू कर दीजिए. तो जो भी आंसर आ रहा है 3.75 इंटू 1.5, दैट इज योर एवरेज स्पीड. ओके, एंड फॉर एवरेज वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट. सो नेट डिस्प्लेसमेंट 2.5 माइनस 1.25. सो नेट डिस्प्लेसमेंट 1.25 डिवाइडेड बाय 40 मिनट. तो इतना आप करके देखिए कितना आएगा. इस लास्ट वाले क्वेश्चन में केवल आपको इतना ही पार्ट करना है, इसको कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी निकालनी है आपको. ओके, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही देखना है कि जहाँ तक भी ऑब्जेक्ट जा रहा है और स्टॉप हो रहा है वहाँ तक रुकने में से कितना टाइम लग रहा है. सिमिलरली ऐसे कुछ क्वेश्चन और भी आ सकते हैं. सपोज अ बॉडी इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी इन स्पीड आफ्टर 3 minutes, after 5 minutes, any time given. First of all we have to find how much time it will take to reach maximum height. Okay, and the rest of time it comes down. तो सबसे पहले हमें यही फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर जा रहा है, वहाँ तक पहुँचने में से कितना टाइम लग रहा है, और बचे टाइम वो नीचे आएगा. ओके, और जब भी जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है और एकदम से ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो हमें ये देखना है कि उसे स्टॉप होने में कितना टाइम लग रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, देन वी विल प्रोसीड नेक्स्ट. ओके, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट आपको ये देखना है कि जब ऑब्जेक्ट स्टॉप हो रहा है, रुक रहा है, तो उसे रुकने में कितना टाइम लग रहा है. चाहे आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करो या मूविंग कंडीशन में. जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, होम टू मार्केट, जब होम टू मार्केट जा रहा है तो क्या हो रहा है, वहाँ पर रुक रहा है एंड देन ही कम बैक. ओके,